बच्चों, in your geography textbook, previous lecture में we studied the first chapter resources and development, और उसके बाद जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सेकेंड और थर्ड चैप्टर है they will not be evaluated in the board examination, उसे हटा दिया गया है। सिर्फ वाटर चैप्टर का मैप वर्क विल बी कमिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर, दैट इज agriculture. So I know you know the meaning of agriculture in Hindi. It is called कृषि। तो बच्चों, let's first know the meaning of agriculture. तो स्टूडेंट, एग्रीकल्चर ये जो शब्द है ये लैटिन शब्द से लिया गया है और दो शब्दों को मिलाकर के ये एग्रीकल्चर वर्ड बना है। सो फर्स्ट इज एगर, दैट मीन्स सॉइल, and the second word is culture, that means cultivation. And what is the meaning of cultivation? To prepare or develop. तो ये जो एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एगर सॉइल एंड कल्चर कल्टीवेशन, प्रिपेयर और डेवलप सॉइल। सो बच्चों, नाउ लेट्स नो द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट of cultivating soil to grow crops and also rearing livestock. तो rearing का मतलब हो गया टेक केयर, पालना। तो पशुपालन और growing crop on soil is what? Agriculture. So hope student the definition is clear. Once again I will repeat. Agriculture is the science and art of cultivating soil to grow crops and rearing livestock. This is the definition of agriculture. Student, you all know that in every activity, किसी भी activity में there are three system you can say, that is input, processing, output. कोई भी एक्टिविटी तुम करोगे तो ये तीन चीज जरूरी है, इनपुट, processing, output. In the same way, agriculture also has these three things. First is input, वो सारे requirement that is needed for agriculture is the input, like seeds, chemical fertilizer, insecticide, pesticide, water for irrigation. तो ये जो भी inputs है they are the requirement of agriculture. Then processing में students plowing, sowing, spraying insecticide, pesticides, even water जो हम irrigate करते हैं field में, that is also a part of processing. And finally harvesting. So this is processing. And last में output. What is the outcome? So it is crop. जो अनाज लास्ट में हमें मिलता है रिजल्ट के रूप में, that is output. So these are the three systems in agriculture. बच्चों, now let's discuss what is the importance of agriculture for our country. You know the fact that India is referred as एग्रीकल्चरल कंट्री, कृषि प्रधान देश है हमारा। तो कृषि का हमारे देश के लिए क्या महत्व है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये एग्जाम में भी आ सकता है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडिया। सो इंपॉर्टेंस
of agriculture. So first, very important, agriculture provide food security to our nation, क्योंकि कृषि से अनाज का पैदावार होता है और जो ये करोड़ों जनसंख्या देश में रहती है इसको भोजन प्रदान करती है कृषि. सो जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड मेंटेन फूड सिक्योरिटी. Second, 2/3 of India's population is dependent on agriculture. So student, 2/3 जनसंख्या को कृषि रोजगार प्रदान करता है. 2/3, you can say about 60% of people in India derive occupation from agriculture. Third, agriculture provide raw material to all the agro-based industry that run in our country. तो ये जो कृषि है हमारे देश में जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? दोज इंडस्ट्री विच यूज एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस टू मैन्युफैक्चर गुड्स. तो ऐसे इंडस्ट्री को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल शुगर मिल, कॉटन टेक्सटाइल, जूट मिल्स. सो दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो कृषि जो है इन उद्योगों को क्या प्रदान करती है? रॉ मटेरियल. So 3 points we have got. Now fourth, कुछ agricultural product like jute, tea, coffee, spices, these are exported to different nations and thus India earns a huge foreign exchange. तो कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम दूसरे देशों को बेच करके उससे पैसा कमाते हैं. फोर्थ, कृषि का भारत के जीडीपी में करीब 16% शेयर है. सो एग्रीकल्चर हैज अ सब्सटेंशियल पोर्शन शेयर इन इंडियाज जीडीपी एंड इट इज अबाउट 16%. What is the full form of GDP? Gross Domestic Product. So these are the 5 important points that you will be mentioning if question will be asked. What is the importance of agriculture for India? Let's see once again. Maintain food security. भोजन प्रदान करता है लोगों को. 2/3 जनसंख्या भारत की अपने ऑक्यूपेशन के लिए कृषि पर निर्भर है. रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज,
जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारे देश में रन करते हैं उनको रॉ मटेरियल प्रदान करता है। लाइक शुगर मिल में व्हाट इज द रॉ मटेरियल? शुगर केन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में व्हाट इज द रॉ मटेरियल? कॉटन। सो ऑल दीज रॉ मटेरियल are provided by agriculture to these industries. Then some agricultural products, they are exported and India earns foreign exchange. And last, it has a substantial portion in India's GDP. So hope student, these 5 points are clear to everyone. Now let's move. Now let's talk हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अब हम जानेंगे कि हमारे देश की कृषि की क्या इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। And this is also very important for 5 marks. Question may be asked, highlight the important features of Indian agriculture. भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं को समझाओ। तो फर्स्ट यू विल बी राइटिंग, आई एम राइटिंग ओनली द कीवर्ड्स। भारत में मुख्यतः ज्यादातर लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें फार्मर प्रोड्यूसेस क्रॉप फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस प्रकार की खेती होती है। सेकंड, जनरली हमारे देश में जो कृषि है वो छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड पे की जाती है, ऑन स्मॉल plots of land. So generally agriculture is practiced on small plots of land. Third, through traditional method. तो भारत में कुछ ही किसान मॉडर्न मेथड, मॉडर्न पद्धति से खेती करते हैं, लेकिन अधिकतर किसान दे स्टिल प्रैक्टिस फार्मिंग थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। फोर्थ, हमारे देश में कृषि मुख्यतः मॉनसून रेन पर डिपेंड करती है। सो इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन monsoon rain. And fourth, you can mention, हमारे देश में there are 3 cropping season. So there are 3 cropping seasons. And which are they? They are Kharif, Rabi and Zaid. तो इन तीनों अलग अलग सीजन में अलग अलग अनाज उगाए जाते हैं। So these are the 3 cropping season: Kharif, Rabi and Zaid. So these are the 5 important features of Indian agriculture. So hope student ये पांचों पॉइंट तुम लोगों को समझ आ गए हैं। और स्टूडेंट एक और तुम लिख सकते हो, भारत में
कृषि जो है मुख्यतः लेबर इंटेंसिव है, मैनुअली लोग खेतों में काम करते हैं, मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल कम होता है और ज्यादातर लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, सो इट इज लेबर इंटेंसिव. Okay students, now we will be discussing types of farming. तो बच्चों, agriculture is an age-old activity in our country, and cultivation methods have changed according to physical environment, technology, and socio-cultural practices. So now let's discuss what are these. तो जो कृषि में बदलाव आए हैं उनके पीछे मुख्यतः 3 कारण हैं: फिजिकल एनवायरनमेंट, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस. सेकेंड इज level of technology and socio cultural practices. तो बच्चों, फिजिकल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू पैटर्न ऑफ रेनफॉल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर वर्षा के वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आता है तो उसके अनुसार फिर जो किसान है वो भी अपने खेतों में उसके अनुसार अनाज का पैदावार करते हैं. एंड ऑल्सो इफ द लैंड से, जो अगर लैंड पहले फर्टाइल हुआ करता था अब वो डिग्रेड हो गया है, तो पहले जहां पर दूसरे अनाज बोए जाते थे उस लैंड पर, तो डिग्रेडेशन के बाद सम अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड. तो ये तुम्हारा फिजिकल एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो उसके अनुसार किसान भी जो मेथड है या अनाज कल्टीवेट करते हैं, दैट ऑल्सो गोज ऑन चेंजिंग. एंड देन दीज टू आर ह्यूमन फैक्टर. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो पहले टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थे तो दूसरे मेथड से कृषि होती थी, प्रिमिटिव यू कैन से, एंड इवन सब्सिस्टेंस. लेकिन टेक्नोलॉजी में लेवल इसका बढ़ गया है, एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी जिस रीजन में, तो नाउ द फार्मर्स हैव चेंज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग. तो अब वहां पर मॉडर्न मेथड से फार्मिंग हो रही है. एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो बच्चों, किसान भी समाज में रहता है और समाज में जैसे जैसे बदलाव आता है, उस समाज में अगर एक किसान दूसरी पद्धति को अपनाता है, मेथड अपनाता है, तो वहां पर रहने वाले किसान भी उसका देखा देखी फिर उसी के अनुसार दूसरे प्रैक्टिसेस, मेथड कृषि में अपनाते हैं. एज वेल एज उस समाज में जिस क्रॉप प्रोड्यूस का ज्यादा डिमांड होता है, किसान वही अनाज फिर अपने खेतों में भी उपजाता है. सो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड हाउ इन दैट सोसाइटी पीपल आर changing their agricultural practices according to the society. Okay student, now according to different types of agriculture that is practiced in India, there are 2 types. Do remember, there are 2 types of agriculture which is practiced in our country. So now let's discuss which are the 2 types of agriculture or farming practiced in our own country, India.
So these two types are subsistence and commercial. Now student, subsistence farming और commercial farming में हम लोग difference देखते हैं, and this may also come in your exam. Differentiate between subsistence farming and commercial farming. तो subsistence farming, already I have told, this type of farming is practiced for self consumption. इसमें किसान जो भी क्रॉप कल्टीवेट करता है दैट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है. तो सिंपली यू कैन से फॉर सेल्फ कंजम्पशन. And this commercial farming is generally practiced for selling the product and earning money. तो जो भी फसल यहाँ पर उगाए जाते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है उस अनाज को, जो भी पैदावार हो रहा है उसे बेच करके पैसा कमाना. तो सिंपली फॉर अर्निंग मनी. Second difference, this type of farming is practiced through traditional method. And over here, this type of farming is practiced through scientific and modern method. Then in this type of farming, subsistence में कृषि जो है वो छोटे छोटे लैंड पर, छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड पर किया जाता है. तो प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. And over here, commercial farming is generally practiced on large plots of land. देन सबसिस्टेंस में चूंकि किसान गरीब होता है और उसके पास छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लैंड के, तो यहाँ पर जनरली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है. सो लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट. और यहाँ पर मॉडर्न पद्धति से बड़े बड़े खेतों पर, तो जनरली इस प्रकार की खेती में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है. सो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. एंड लास्ट यू कैन मेंशन over here the produce is less. जो भी प्रोडक्शन होता है वो कम होता है. So total production is less. बट यहां पर चूंकि बहुत बड़े बड़े विशाल लैंड पे हो रहा है खेती, तो प्रोडक्शन इज लार्ज. So these are the main difference between subsistence and commercial farming or agriculture.
तो होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और हमारे देश में अधिकतर सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के लास्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी वन टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो बच्चों, सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी दो प्रकार का होता है जो हमारे देश में होता है। एक है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बट इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। I have written the short form subsistence. Okay students, so this type of farming is also referred as shifting cultivation or slash and burn farming. बच्चों, मुझे याद है तुम लोगों ने ये अपने हिस्ट्री के भी चैप्टर में पढ़ा है और क्लास 8 के ज्योग्राफी में भी पढ़ा है अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है, इस प्रकार की कृषि हमारे देश में कुछ पॉकेट्स, कुछ एरियाज में प्रैक्टिस होती है, एंड दीज एरियाज आर जनरली रिमोट एरिया, हिली, रॉकी, फॉरेस्टेड रीजन होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यू कैन से नॉर्थ ईस्ट, some parts of Madhya Pradesh, even some parts of Odisha, झारखंड, वेस्टर्न घाट्स, तो ये जो जंगल झाड़ वाले एरियाज हैं वहां पर लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज आल्सो रेफर्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यू कैन जस्ट मेंशन इन फ्यू पॉकेट्स, इन फ्यू रीजन्स। And these few regions are forested, remote areas. Second, in this type of farming, farmer generally uses primitive tools like hoe, dowel, digging sticks, तो हो इज कुदाली, डाउ इज अ टाइप ऑफ सोड, छोटा सोड तलवार के समान होता है जो पेड़ों को, पौधों को काटने में मदद करता है। एंड डिगिंग स्टिक्स आर, यू कैन से, एक लंबा सा होता है जो कि जमीन को खोदने में मदद करता है। सो दीज आर द प्रिमिटिव टूल्स जिसका उपयोग किसान इस प्रकार के कृषि को करने में करते हैं। थर्ड इज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेन एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो पूरी तरह से ये कृषि वर्षा के जल पर और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है। Next students, generally this type of farming is practiced on very small patches of land. छोटे छोटे लैंड पर किया जाता है और जनरली फार्मर अपने और अपने परिवार या कम्युनिटी लेबर के मदद से इस प्रकार की खेती करता है। तो फार्मर along with
family members. Practice this type of farming. तो बाहर से कोई लेबर नहीं आते हैं, किसान अपने और अपने परिवार की मदद से इस प्रकार की खेती करता है। और बच्चों, जो प्रोड्यूस है वो बहुत ही कम होता है और एक जगह स्थायी रूप से कृषि ये नहीं होती है। फार्मर 2-3 साल के बाद शिफ्ट, जहां पर वो अभी खेती कर रहा है, 2-3 साल के बाद he shifts to some other place. So these are the important features of primitive subsistence farming. और इस प्रकार की खेती में first you should mention this also कि in this type of farming a plot of land is cleared by cutting down the trees and burning them. तो पहले पेड़ को काट करके जला करके एक पैच ऑफ लैंड तैयार किया जाता है और उस पर किसान 2-3 वर्षों तक खेती करता है और जब उस लैंड का नेचुरल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है तो ही मूव्स टू सम अदर प्लेस एंड रिपीट द सेम थिंग ओवर देयर ऑल्सो। सो इसीलिए इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और चूंकि इसमें पेड़ों को काट के जलाया जाता है सो इट इज रेफर्ड एज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो बच्चों, हमारे देश में ये अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जानी जाती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह में इट इज रेफर्ड एज झूम कल्टीवेशन। उसी तरह इन मध्य प्रदेश इट इज कॉल्ड देवार and it is called Deepa in Bastar district, Chhattisgarh, Kumari in Western Ghats of India, Kurwa in Jharkhand. So these are the local name of shifting cultivation. So hope student, this method of farming in India is clear to you. So today I end my lecture over here. Hope whatever I have discussed is clear to everyone. But still, if you have problem, you can post your query on the group and I will try to answer your questions. So until then, stay happy, stay healthy. Thank you.